One of the important characteristic of sound is echo. So echo is an interesting example of reflection of sound. Echo is an example of reflection of sound. और ये एको फिनोमेना आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा. So what is echo? Echo is the repetition of original sound. Echo is the phenomena of repetition of original sound because of reflection of sound from some rigid surface. And that rigid surface is at a certain distance from the source of sound. The reflection of sound from a rigid surface is called echo. So when we are standing at some distance from the wall, let us take an example of wall. तो यहाँ पे wall becomes a reflecting surface, जहाँ पे sound strike करके reflect होगा. The example of reflecting surface can be wall, yeah, it can be a mountain, yeah, it can be a building. So let us take example of wall as a reflecting surface. And we are standing at some distance from the reflecting surface. And we produce a sound. That sound can be a shout, it can be a loud shout, or it can be a clap. So we generate a sound. So that sound will travel towards the reflecting surface. इस केस में wall is a reflecting surface. Then यहाँ से sound strike करके reflect होगा and the same reflected sound will reach to the observer. So after some time we'll hear the same sound which we have produced before some time. So this phenomena is echo. तो जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस करेंगे हम लोग उसी साउंड को वापस सुनेंगे बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दैट इज echo. Let us calculate the minimum distance required between the observer, यहाँ पे observer is the source of sound, and the reflecting surface to hear the echo. तो अगर हमको echo सुनना है तो उसके लिए minimum distance कितना होना चाहिए between the observer and the reflecting surface. So this is calculation of that minimum distance. Number one, for our ears to distinguish between two sounds. Our ears can distinguish two sounds when the minimum time duration between them should be at least 0.1 second. So our ears can distinguish two sounds which occur at an interval of more than 0.1 second. 0.1 का मतलब 1/10 of a second. And that is called persistence of hearing. तो दो साउंड के बीच में मिनिमम टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड का होना चाहिए. अगर दो साउंड के बीच में टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड से भी कम हुआ तो we will not be able to distinguish two sound. Both the sounds will appear same. So that is called persistence of hearing. Now to calculate minimum distance, let us take an example of 22 degrees Celsius. We consider temperature of air to be 22 degrees Celsius. का मतलब हमारा जो calculation होगा, it is at 22 degrees Celsius. So at 22 degrees Celsius, speed of sound in air V is 344 meter per second. So at a temperature of 22 degrees Celsius, velocity or the speed of sound in air कितना होगा 344 meter per second. To hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second. ये हमको पता है कि दो साउंड के बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए. So to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 second after starting from source, get reflected and come back to the source. That means अगर हम लोग यहाँ पे समझो साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो साउंड है ये ऑब्जर्वर से वॉल की तरफ ट्रैवल करेगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस ऑब्जर्वर की तरफ आएगा.
का मतलब एक्चुअल साउंड जो ऑब्जर्वर ने प्रोड्यूस किया है और रिफ्लेक्टेड साउंड जो ऑब्जर्वर सुन रहा है, तो इन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो अभी हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। और ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? साउंड ऑब्जर्वर से वॉल की तरफ जाएगा, रिफ्लेक्टेड साउंड वापस वॉल से ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। सो टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी 0.1 सेकंड। का मतलब यहां से वॉल की तरफ एंड वॉल से बैक टू ऑब्जर्वर, ये टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 0.1 सेकंड। बिकॉज अगर ये ड्यूरेशन 0.1 सेकंड से भी कम हुआ तो हम लोग एक को सुन नहीं पाएंगे, तो मिनिमम टाइम तो 0.1 सेकंड होना ही चाहिए। तो 344 इंटू 0.1 दैट बिकम्स 34.4 मीटर। इसका मतलब टू हियर एंड एको डिस्टिंक्टली क्लियरली द मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34.4। बट ये जो डिस्टेंस होगा ये टोटल डिस्टेंस होगा, दैट इज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू वॉल एंड वॉल टू ऑब्जर्वर, बिकॉज उन्होंने टोटल टाइम यहां पे 0.1 सेकंड। का मतलब ये जो 34.4 मीटर है ये दो डिस्टेंस मिला के है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस 34.4 मीटर है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड, इन दिस केस सोर्स ऑफ साउंड इज ऑब्जर्वर, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन source of sound, that is observer, and the reflecting surface should be half of 34.4, because ये दो डिस्टेंस मिला के 34.4 मीटर है। तो एक साइड का डिस्टेंस कितना होगा? इसका हाफ करो, that will be 17.2 मीटर, that is approximately 17 मीटर। That means to hear an echo, अगर हमको echo सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर। ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 17 मीटर। अभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये हमने 22 डिग्री सेल्सियस पे किया है। बट वी नो दैट एज टेम्परेचर चेंजेस, speed of sound also changes, because we know that speed of sound is directly proportional to square root of absolute temperature. So as we increase the temperature, speed of sound will also increase and then distance will also increase. का मतलब ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है 17 मीटर का, ये 22 डिग्री सेल्सियस के लिए होगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली रूम टेम्परेचर जो है ना वो 22 के क्लोज बाय होता है। तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एंड एको। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वन ऑफ द फिनोमिना रिलेटेड टू साउंड, दैट इज एको। Another phenomena related to sound is reverberation. जैसे साउंड का हमने एको फिनोमिना स्टडी किया था, तो दिस इज अनदर फिनोमिना रिलेटेड टू साउंड, दैट इज रिवर्बरेशन। टू अंडरस्टैंड दिस रिवर्बरेशन, लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक एम्प्टी रूम है, दिस इज वन एम्प्टी रूम, रूम पूरा खाली है, एंड यू आर सिटिंग एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, and at the other end there is one source of sound. आप रूम के इस एंड पे खड़े हो एंड रूम के दूसरे एंड पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, रूम इज कंप्लीटली एम्प्टी, एंड इफ दिस सोर्स ऑफ साउंड इज एमिटिंग साउंड, तो दिस साउंड वेव विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। सोर्स ऑफ साउंड जो साउंड वेव एमिट करेगा, दिस साउंड वेव विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस होंगे सीलिंग पे, साउंड विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द फ्लोर ऑफ द रूम, साउंड विल ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड एट द वॉल्स, रूम के जो वॉल्स होंगे वहां पे भी साउंड का रिफ्लेक्शन होगा। And if the distance between source and the person or the observer is less than 17 meter,
then all these sound waves, all the reflected sound wave will reach the observer, and that will cause sound to persist longer. तो मतलब हमको जो साउंड सोर्स से जो सुनाई देगा वो ज्यादा टाइम तक सुनाई देगा. It will get prolonged because of this multiple reflections. And this persistence of sound, this prolonged sound is called as reverberation. So what is reverberation? Sound waves gets reflected multiple times, as we can see in this diagram. So in reverberation, sound wave gets reflected multiple times from the walls, floor and ceiling of a closed room, which are nearer than 17 meters from the source of sound. And this causes single sound to be heard not just once but continuously. का मतलब वो जो sound का effect होगा वो prolong हो जाएगा. We'll hear that sound for a longer duration of time and continuously, and that is called as reverberation. So reverberation can be experienced in an empty hall, या in an empty auditorium, या in an empty room. रिवर्बरेशन को अगर रिड्यूस करना है, अगर इस फिनोमिना रिवर्बरेशन को रिड्यूस करना है, तो देयर आर मल्टीपल मेथड, देयर आर मेनी मेथड्स. तो रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग वॉल्स एंड सीलिंग रफ. जितने वॉल्स एंड सीलिंग रफ करोगे उतना साउंड का रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा. स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन कम होता है. The reverberation can be reduced by making walls and ceiling of the room rough. And in theaters and auditoriums में अगर reverberation कम करना है तो chairs and walls are covered with sound absorbing materials. तो थिएटर्स एंड ऑडिटोरियम में रिवर्बरेशन कम करने के लिए चेयर्स एंड वॉल को साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर करते हैं. पोरस कार्डबोर्ड शीट्स, these are the material used for sound absorbing. They will absorb sound. तो what are sound absorbing materials? तो पोरस कार्डबोर्ड शीट्स या जिप्सम मटेरियल या जिप्सम बोर्ड, थिक कर्टन्स. These are the sound absorbing material used for absorbing the sound. And these materials are fitted at the ceilings and at the walls, and they will reduce reverberation to a large extent. So this is phenomena related to sound, and this phenomena is called reverberation. Hello students. आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. तो साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. बेसिकली साउंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 कैरेक्टरिस्टिक्स. साउंड के टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, फिर हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. तो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड? सबसे पहला होता है लाउडनेस. तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज लाउडनेस. लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो लाउडनेस का मेजरमेंट इंटेंसिटी से होता है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो वी कैन से लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लाउडनेस साउंड कैन बी आइदर शाउट या साउंड कैन बी विस्परिंग. लाउडनेस के टर्म्स में साउंड या तो लाउड साउंड होगा, है ना, उसको बोलेंगे शाउट, या साउंड कैन बी सॉफ्ट, उसको बोलेंगे विस्परिंग. तो शाउट किसको बोलेंगे? जिसमें लाउडनेस ज्यादा होगा. तो साउंड हैविंग बिगर लाउडनेस या ग्रेटर लाउडनेस इज शाउट.
एंड विस्परिंग में क्या होगा, साउंड का लाउडनेस एकदम कम होगा. तो साउंड ऑफ लो लाउडनेस या लो इंटेंसिटी साउंड इज विस्पर एंड हाई इंटेंसिटी साउंड को क्या बोलेंगे, शाउट. तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, लाउडनेस. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पिच, पिच ऑफ द साउंड. और ये जो प्रॉपर्टी है साउंड का, ये मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव. तो जैसे लाउडनेस मेजर होता है एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, वैसे पिच मेजर होगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में. का मतलब वी कैन हैव हाई पिच साउंड और वी कैन हैव लो पिच साउंड. पिच के टर्म में फ्रीक्वेंसी, पिच के फॉर्म में साउंड या तो हाई पिच होगा या लो पिच होगा. हाई पिच साउंड इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड लो पिच साउंड इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड. हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को बोलेंगे श्रिल साउंड. श्रिल का मतलब एकदम तीखा साउंड, तीक्ष्ण साउंड. तो हाई पिच साउंड इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, उसको बोलेंगे श्रिल. एंड लो पिच साउंड इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड इज कॉल्ड ग्रेव. ग्रेव का मतलब एकदम मोटी आवाज होगी, ग्रेव फ्लैट मोटी आवाज. फॉर एग्जाम्पल, अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय चाइल्ड और अ वुमन इज श्रिल. और एक आदमी, अ मैन, साउंड ऑफ अ मैन इज ग्रेव. तो साउंड ऑफ चाइल्ड और वुमन इज श्रिल एंड द साउंड ऑफ मैन इज ग्रेव. ये तीखी आवाज होते हैं, एकदम तीक्ष्ण आवाज होती है, और ये मोटी एकदम फ्लैट आवाज होती है, इट इज कॉल्ड ग्रेव. तो हाई पिच साउंड श्रिल, लो पिच साउंड ग्रेव. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज क्वालिटी, also called timbre. Quality, also called timbre. And quality or timbre is measured in terms of waveform. Sound का waveform. तो quality of sound या timbre of sound is measurement in terms of waveform. तो अगर साउंड एकदम पीरियोडिक है, एकदम सिमेट्रिकल है, पीरियोडिक एंड सिमेट्रिकल विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, तो उसको बोलेंगे म्यूजिकल साउंड. तो म्यूजिकल साउंड इज अ पीरियोडिक साउंड ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट वेवफॉर्म. उस वेवफॉर्म का शेप चेंज नहीं होता है. एंड सेकेंड टाइप इज नॉइज. नॉइज का मतलब इट इज अ नॉन पीरियोडिक साउंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग वेवफॉर्म. तो अगर पीरियोडिक शेप का वेवफॉर्म होगा, एक सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होगा कांस्टेंट शेप का, तो उसको म्यूजिकल साउंड बोलेंगे. बट नॉन पीरियोडिक वेव having different amplitude randomly, it is called noise. So on the basis of quality, sound can be musical sound or it can be noise. So these are the three characteristics of sound: loudness, pitch and quality, also called timbre. Loudness measure होता है in terms of intensity. Intensity is directly proportional to amplitude का square. Pitch measure होता है frequency के फॉर्म में, एंड क्वालिटी और टिम्बर मेजर होता है वेव फॉर्म के फॉर्म में. तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. नाउ वी स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ लाउडनेस. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. अभी हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, हाउ इट इज डिफाइंड, उसका यूनिट क्या होता है, उसके रेंजेस क्या होते हैं. सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिनोट करेंगे बाय सिंबल आई. तो आई होगा सिंबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. इट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी क्रॉसिंग या ट्रैवलिंग परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. तो एक यूनिट एरिया में से, यूनिट का मतलब कितना, 1 मीटर स्क्वायर.
तो एक यूनिट एरिया में से एक सेकंड में कितना साउंड एनर्जी पास होगा या क्रॉस होगा परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई का फॉर्मूला होगा E अपॉन A इंटू टी। यहां पे E स्टैंड्स फॉर साउंड एनर्जी, A स्टैंड्स फॉर एरिया और T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो इस एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो इंटेंसिटी इज पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ पावर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला E अपॉन AT और P अपॉन एरिया, पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है, हाफ रो V ओमेगा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी, ये तो इंटेंसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी वी यूज द फॉर्मूला हाफ रो V ओमेगा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। Here rho stands for density of the medium in which the sound wave is traveling. Rho होगा density of a medium in which the sound is traveling. V होगा velocity of sound in that particular medium. V होगा velocity of sound in that particular medium. Omega is angular frequency और A होगा amplitude. तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो V ओमेगा स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। And that is why we say intensity is directly proportional to amplitude का square. देखो, according to this relation, intensity proportional to square of amplitude, I proportional to A square. इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा? देखो, इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इंटेंसिटी का यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। बट व्हाट इज जूल पर सेकेंड? जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। तो अगर जूल पर सेकेंड वॉट है, जो पावर का यूनिट है, तो जूल पर सेकेंड को लिखो वॉट, दैट इज W, तो इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये होंगे इंटेंसिटी के यूनिट्स। लेट अस फाइंड आउट रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग आल्सो कॉल्ड लिमिट ऑफ हियरिंग। लिमिट ऑफ हियरिंग का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी टू मैक्सिमम इंटेंसिटी रिसीव बाय ह्यूमन ईयर। तो अपने जो कान है वो कितने मिनिमम इंटेंसिटी को सुन पाते हैं या कितने मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम लोग सुन पाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ हियरिंग। इट इज मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लिमिट ऑफ हियरिंग इज डिफरेंट देन लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। ये दो टर्म्स अलग है, एक होता है लिमिट ऑफ हियरिंग और एक होता है लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ये जो लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी होता है, ये साउंड वेव के फ्रीक्वेंसी का रेंज है जो हम लोग सुन पाते हैं, जो हमारे ह्यूमन ईयर सुन पाते हैं। तो लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी इज मेंशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। So we can receive sound wave, we can listen to the sound wave of frequency between 20 hertz to 20 kilohertz. जो साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा ये हम लोग सुन नहीं पाएंगे, और जिस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होगा ये भी हम लोग सुन नहीं पाएंगे। तो इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। और अभी हम लोग क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं? लिमिट ऑफ हियरिंग। लिमिट ऑफ हियरिंग जो है वो डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो लोअर लिमिट होगा दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो अपर लिमिट होगा, हाईएस्ट लिमिट होगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होगा लोअर लिमिट एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन होगा हायर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। So what is threshold of hearing? The lowest intensity of sound that can be perceived by the human ear is called threshold of hearing. तो एक लोएस्ट इंटेंसिटी जो हम लोग सुन पाएंगे, साउंड का लोएस्ट इंटेंसिटी दैट कैन बी
that can be recognized by the human ear, that is called threshold of hearing. और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का वैल्यू होता है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। का मतलब ये होगा लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमन ईयर। इंटेंसिटी स्मॉलर देन दिस कैन नॉट बी लिसन बाय अवर ह्यूमन ईयर, हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो वैल्यू हमने डिफाइन किया है, दिस इज फॉर अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। तो फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज the threshold of hearing होगा 10⁻⁻12 watt per meter square। ये होगा lower limit of intensity of sound। upper limit of intensity of sound is called threshold of pain। तो what is threshold of pain? It is the highest intensity of sound that can be perceived by the human ear। This is called threshold of pain। और threshold of pain का value for 10 kilohertz frequency is 1 watt per meter square। So this is the highest intensity of sound human ear can withstand, 1 watt per meter square। But अगर intensity of sound 1 watt per meter square से ज्यादा होगा तो your ears are likely to get damaged। फिर आपके कान को नुकसान कर सकता है साउंड। तो any sound of intensity higher than 1 watt per meter square is dangerous to human ear। It can cause damage to the human ear। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड और ये हो गया अपर लिमिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन ईयर्स। तो व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द लिमिट ऑफ हियरिंग? तो लिमिट ऑफ हियरिंग विल बी फ्रॉम 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर अप टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ हियरिंग एंड दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। Let us now study the relation between loudness of sound and intensity of sound। loudness और intensity of sound में जो रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले loudness क्या होता है? तो loudness is the sensation received by our ear due to intensity of sound। तो जब भी हम लोग साउंड इंटेंसिटी को सुनते हैं तो हमारे कान में जो उसका परसेप्शन होता है या सेंसेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। एंड लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। मोर इंटेंसिटी मोर लाउडनेस, लेस इंटेंसिटी लेस लाउडनेस, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओके, नाउ ये भी पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव बट इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। लाउडनेस जो है वो एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है और इंटेंसिटी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव टर्म है। ऑब्जेक्टिव का मतलब इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो अगर कोई साउंड इंटेंसिटी का वैल्यू है तो दैट इंटेंसिटी विल बी सेम फॉर ऑल द पर्सन, फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का परसेप्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्टिव। जबकि लाउडनेस जो है इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। का मतलब सेम लाउडनेस का साउंड विल अपीयर टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। का मतलब एक ही लाउडनेस का साउंड 2 या 3 पर्सन डिफरेंट तरीके से मेजर होंगे या मेजर करेंगे। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई लाउडनेस इज सब्जेक्टिव। जबकि इंटेंसिटी सब पर्सन के लिए सेम होगा फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। नाउ द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लाउडनेस और इंटेंसिटी का जो रिलेशन दिया था वो दिया था साइंटिस्ट वेबर एंड फेशनर। तो इन दो साइंटिस्ट ने लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन स्टेट किया था एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड वेबर-फेशनर लॉ। According to Weber-Fechner law, loudness L is equal to K log of I। L equals to K log of I। but ये जो log होगा ये होगा कॉमन लॉगरिथम। एंड अगर एक कॉमन लॉगरिथम है तो उसका बेस 10 होगा। तो दिस इज log I but to the base 10। यहां पे L stands for loudness, K होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और I होगा इंटेंसिटी। का मतलब लाउडनेस जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पे मेजर होता है। लाउडनेस इज मेजर्ड ऑन द लॉगरिथमिक स्केल बिकॉज फॉर्मूला में लॉग है।
ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो सिंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज 1, therefore the relation becomes L equals to log I to the base 10। तो ये हो गया वेबर फेशनर लॉ, L equals to log of I but log का बेस 10 होगा। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड वेबर फेशनर लॉ। ये हो गया रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। नाउ सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे L1। तो लेट L1 be the loudness of sound at some reference intensity I0। तो रेफरेंस इंटेंसिटी हम लोग कॉल करेंगे I0। और एक कौन सा इंटेंसिटी होगा? ये होगा आपका लिमिट ऑफ हियरिंग। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ हियरिंग या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो जो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का वैल्यू है उसको हम लोग रेफरेंस मान लेंगे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग? इट इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस इंटेंसिटी पे साउंड का जो लाउडनेस होगा उसको L1 मानेंगे। तो L1 होगा लाउडनेस ऑफ साउंड एट थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी। उसको हम लोग रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल करेंगे, उसका सिंबल I0 डिफाइन करेंगे और I0 कितना होगा? 10⁻12 होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंड लेट, तो फिर L1 का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पे L1 लिखो और यहां पे I0 लिखो। तो L1 का फॉर्मूला होगा log of I0। L1 कितना होगा? log of I0। ये होगा लाउडनेस एट रेफरेंस इंटेंसिटी, दैट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो L1 का फॉर्मूला होगा log of I0। फिर L2 होगा लाउडनेस ऑफ साउंड एट सम गिवन इंटेंसिटी I। तो एक और इंटेंसिटी हमको दिया गया है, लेट अस कॉल दैट इंटेंसिटी एज I। तो इस इंटेंसिटी पे साउंड का जो लाउडनेस होगा उसको L2 डिफाइन करेंगे। तो फिर L2 का फॉर्मूला क्या होगा? L2 will be equal to log of I, where I is the given intensity। Of course यहां पे log का बेस 10 होगा हर जगह पे। अभी इन दोनों को डिफरेंस ले लो, subtract these two। तो what is L2 minus L1? इन दोनों को subtract करो। तो L2 minus L1 is equal to log I minus log I0। और एक जो लाउडनेस का डिफरेंस होगा वही हम लोग कॉल करेंगे साउंड लेवल। तो L2 माइनस L1 को कॉल करेंगे बीटा और ये होगा फॉर्मूला फॉर लाउडनेस। इसका मतलब लाउडनेस जो मेजर होगा वो डिफरेंस में मेजर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाउडनेस जो हम लोग मेजर करेंगे वो डिफरेंस के फॉर्म में मेजर करेंगे। किसके बीच में डिफरेंस? लाउडनेस एट गिवन इंटेंसिटी माइनस लाउडनेस एट रेफरेंस इंटेंसिटी। तो ये जो L2 माइनस L1 है उसको हमने बीटा कॉल किया, जो होगा हमारा लाउडनेस का फॉर्मूला। बट लाउडनेस इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस L2 माइनस L1, वेयर L2 इज लाउडनेस एट गिवन इंटेंसिटी एंड L1 होगा लाउडनेस एट रेफरेंस इंटेंसिटी। रेफरेंस इंटेंसिटी क्या होगा? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कितना होता है? 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो L2 माइनस L1 है ना, लाउडनेस का डिफरेंस, इसको मैंने बीटा कॉल किया। इसी को कभी कभी साउंड लेवल बोलते हैं। And as per the theorem of logarithm, log I minus log I0 होगा log of I upon I0। This is according to theorem of logarithm। तो फिर फॉर्मूला क्या हो गया? बीटा इक्वल्स टू log of I upon I0 to the base 10। यहाँ पे बीटा होगा लाउडनेस और I होगा इन गिवन इंटेंसिटी और I0 होगा रेफरेंस इंटेंसिटी। आप यहां पे ऑब्जर्व करें, इस फॉर्मूला में राइट हैंड साइड पे रेशियो है इंटेंसिटी का और लेफ्ट हैंड साइड में लाउडनेस का डिफरेंस है। इन दिस फॉर्मूला ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लाउडनेस का डिफरेंस। तो हमेशा जो हम लोग लाउडनेस मेजर करेंगे वो डिफरेंस के फॉर्म में मेजर करेंगे, दैट इज L2 माइनस L1 और इसी को हम लोग कॉल करेंगे बीटा। तो लाउडनेस बीटा, बट एक्चुअली लाउडनेस बीटा क्या है? L2 माइनस L1 है। तो लाउडनेस बीटा इज इक्वल टू log of I upon I0 to the base 10। लाउडनेस का यूनिट होता है बेल, ये उसका यूनिट है। तो बेल इज अ यूनिट ऑफ लाउडनेस। बेल क्या है? यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो इन बेल यूनिट लाउडनेस का फॉर्मूला होगा log of I upon I0 to the base 10। अगर मुझे ये फॉर्मूला डेसीबेल में एक्सप्रेस करना है, डेसीबेल, तो 1 डेसीबेल, डेसीबेल को लिखेंगे इन द सिंबल डीबी। तो ये डीबी क्या होगा? सिंबल होगा डेसीबेल का। व्हाट इज डीबी? इट इज अ सिंबल ऑफ डेसीबेल।
तो 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल। 1 डेसिबल कितना होगा? 1/10 बेल होगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये फॉर्मूला डेसिबल यूनिट में स्पेसिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 विद दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और इस फॉर्मूला को मैंने 10 से डिवाइड किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10। देन व्हाट इज 1/10 बेल? 1/10 बेल क्या हो गया? डेसिबल हो गया। तो इसकी जगह पे लिखेंगे डीबी। 1/10 बेल की जगह पे लिखेंगे डीबी। व्हाट इज डीबी? डेसिबल। तो फिर साउंड लाउडनेस का फॉर्मूला क्या होगा? बीटा इक्वल्स टू 10 log I अपॉन I नॉट। और ये किस यूनिट में होगा? डेसिबल में। ऑफ कोर्स यहां पे log का बेस क्या होगा? 10। तो साउंड लाउडनेस B इक्वल्स टू log I अपॉन I नॉट, बट ये फॉर्मूला बेल यूनिट में होगा। एंड साउंड लाउडनेस बीटा इक्वल्स टू 10 log ऑफ I अपॉन I नॉट, और ये जो फॉर्मूला होगा उसका यूनिट डेसिबल में होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ये लाउडनेस है और ये इंटेंसिटी है। लाउडनेस का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, बीटा इक्वल्स टू 10 log I अपॉन I नॉट। बीटा इक्वल्स टू 10 log I अपॉन I नॉट। और ये जो लाउडनेस होगा उसका यूनिट क्या होगा? डेसिबल। सिंबल क्या होता है? डीबी। अगर हमको ये लाउडनेस बेल यूनिट में चाहिए तो ये 10 हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ बेल यूनिट लाउडनेस का फॉर्मूला होगा बीटा इक्वल्स टू log I अपॉन I नॉट। इसमें I क्या होता है? एनी गिवन इंटेंसिटी, और I नॉट क्या होगा? रेफरेंस इंटेंसिटी। व्हाट इज रेफरेंस इंटेंसिटी? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब I नॉट का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेट अस फाइंड आउट लिमिट ऑफ हियरिंग इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस। तो जो लिमिट ऑफ हियरिंग था, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसको हम लोग लाउडनेस के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं कि कितना मिनिमम लाउडनेस हम लोग सुन पाएंगे और कितना मैक्सिमम लाउडनेस हम लोग सुन पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग पे इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है? 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हमने रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट कॉल किया था। का मतलब अगर इंटेंसिटी 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो इस इंटेंसिटी पे लाउडनेस कितना होगा? अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो इस इंटेंसिटी पे साउंड का लाउडनेस कितना होगा? इसका मतलब यहां पे देखो I और I नॉट सेम होंगे, बिकॉज अपना I नॉट का वैल्यू भी यही था। तो यहां पे I इक्वल्स टू I नॉट हो गया। तो हमको लाउडनेस फाइंड करना है, तो लाउडनेस बीटा का फॉर्मूला 10 log ऑफ I अपॉन I नॉट, बट दोनों इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज log 1? log 1 होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो दिस इज 10 into 0 विच इज इक्वल टू 0 डेसिबल। इसका मतलब एट ए इंटेंसिटी ऑफ 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर लाउडनेस होगा 0 डेसिबल। ये होगा लाउडनेस का वैल्यू इस इंटेंसिटी पे 0 डेसिबल। का मतलब एट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग लाउडनेस होगा 0 डेसिबल। एट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग का मतलब एट मिनिमम इंटेंसिटी, है ना। मिनिमम इंटेंसिटी परसीव बाय ह्यूमन ईयर। तो मिनिमम इंटेंसिटी पे लाउडनेस होगा 0 डेसिबल का। ये डेसिबल का सिंबल है डीबी। नाउ अपर लिमिट क्या होता है? अपर लिमिट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन इज अपर इंटेंसिटी विच कैन बी परसीव बाय ह्यूमन ईयर। तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इस इंटेंसिटी पे लाउडनेस कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो I बीटा इक्वल्स टू 10 log ऑफ I अपॉन I नॉट, बट यहाँ पे I कितना होगा? 1, और I नॉट कितना होता है? I नॉट इज रेफरेंस इंटेंसिटी, वो कितना होता है? 10⁻12। तो I को लिखा 1 और I नॉट को लिखा 10⁻12। तो ये हो जाएगा 10⁻+12। ये ऊपर गया ना, तो 10⁻12 हो जाएगा। नाउ log 10⁻12 में हम लोग अप्लाई करेंगे रूल log ऑफ m⁻n। तो log ऑफ m⁻n होता है n log ऑफ m, है ना। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एज पर द थ्योरम ऑफ लॉगरिथम। तो ये पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज 10 into 12 log of 10, है ना। दिस इज रूल ऑफ लॉगरिथम। व्हाट इज log 10? log 10 का वैल्यू होता है 1। वैल्यू ऑफ log 10 कितना है? 1। तो log 10 is 1, तो दिस इज 10 into 12 into 1 and that is equal to 120 डेसिबल। तो ये होगा लाउडनेस ऑफ साउंड
at an intensity of 1 watt per meter square. तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का मतलब हाईएस्ट लाउडनेस जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो 120 डेसिबल होगा. अगर लाउडनेस 120 डेसिबल से ऊपर चला गया तो दैट में डैमेज द ह्यूमन ईयर. तो एनी लाउडनेस ग्रेटर देन 120 डेसिबल इज डेंजरस टू ह्यूमन ईयर. वो ह्यूमन ईयर को डैमेज कर सकता है. का मतलब ह्यूमन ईयर के लिए लाउडनेस का रेंज क्या होगा? ह्यूमन ईयर के लिए लाउडनेस ऑफ साउंड का रेंज क्या होगा? बिटवीन 0 डेसिबल टू 120 डेसिबल. लोएस्ट लाउडनेस 0 डेसिबल हम लोग सुन सकते हैं और हाईएस्ट लाउडनेस जो हम लोग सुन सकते हो कितना है? 120 डेसिबल. तो नाउ वी स्पेसिफाई लिमिट ऑफ हियरिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस. का मतलब हमारे जो सुनने के जो लिमिट्स होंगे, साउंड सुनने के जो हमारे लिमिट्स होंगे, उसको इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों फॉर्म में स्पेसिफाई करेंगे. सबसे पहले होगा थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. Threshold of hearing is the lower value या lower range of sound. तो in terms of intensity, threshold of hearing कितना होता है? 10⁻⁻12 watt per meter square. And in terms of loudness, threshold of hearing होगा 0 decibel. 0 decibel. And upper limit होगा threshold of pain. This is upper limit of sound level that can be received by the human ear. तो threshold of pain होगा upper limit. Upper limit intensity के फॉर्म में कितना होगा? 1 watt per मीटर स्क्वायर. और लाउडनेस के फॉर्म में कितना होगा? 120 डेसिबल. तो ये होगा लिमिट ऑफ हियरिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस. तो वी हैव स्टडीड द कंप्लीट थ्योरी ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एंड दैट इज पिच. हमने लाउडनेस स्टडी किया है. नाउ वी कम टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज पिच ऑफ साउंड. What is pitch of sound? The pitch of sound is the sensation received by ear due to frequency. तो due to frequency of sound हमारे ear पे जो sensation produced होगा that is called pitch. इसका मतलब pitch depends upon frequency. And pitch is the characteristic which distinguishes a shrill sound, that is sharp sound, from a grave sound. Grave sound is also called flat sound. So on the basis of pitch we can distinguish sound between two types. एक होगा shrill sound और दूसरा होगा grave sound. shrill sound का मतलब एकदम sharp sound होगा and grave का मतलब एकदम flat sound होगा. Now since pitch depends upon frequency, higher the frequency, higher will be the pitch, and lower the frequency, लोअर विल बी द पिच. और जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जितना पिच हाई होगा, उतना साउंड शार्प होते जाएगा, उतना साउंड श्रिल होते जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बजिंग ऑफ बी और हमिंग ऑफ अ मॉस्किटो. मॉस्किटो का जो हमिंग होता है या बजिंग ऑफ बी होता है, इट हैज हाई पिच. तो बजिंग ऑफ बी या हमिंग ऑफ मॉस्किटो हैज हायर पिच, बट उसका लाउडनेस होता है लो. जबकि लायन का जो रोर होता है, तो रोरिंग ऑफ लायन हैज हायर लाउडनेस बट इट इज लोअर पिच. सिमिलरली द पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर इन पिच एज कंपेयर टू मेल वॉइस. तो फीमेल वॉइस का पिच इज हायर देन मेल वॉइस का पिच. इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म्स, अगर वेव फॉर्म के फॉर्म में समझो पिच को डिस्क्राइब करना होगा, तो सपोज वी हैव टू साउंड वेव्स. दिस इज साउंड वेव नंबर 1 एंड दिस इज साउंड वेव नंबर 2. तो दो साउंड वेव को वेव फॉर्म के बेसिस पे आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो फर्स्ट साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी कम है एंड सेकंड साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. तो हियर वी कैन सी वेरी फ्यू वेव्स, हियर वी कैन सी वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स. तो यहाँ पे वेव्स कम है, इसलिए यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये होगा लो पिच साउंड. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बिकॉज वी हैव मोर नंबर ऑफ वेव्स. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड. तो सिंस वी हैव मोर नंबर ऑफ वेव्स, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एंड देयरफॉर दिस इज हाई पिच साउंड. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवफॉर्म आल्सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लो पिच साउंड एंड high pitch sound. Low frequency, low pitch. High frequency, high pitch. So this is characteristic number
2 of sound. Third and the last characteristic of sound, it is called quality, also called timbre. Quality or timbre is a sensation received by ear due to waveform. तो साउंड वेव का जो वेवफॉर्म होगा, उस वेवफॉर्म की वजह से जो ह्यूमन ईयर पे सेंसेशन प्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर. Two sound waves of same intensity and same frequency will produce different sensation because of their different waveforms. तो अगर दो साउंड वेव है, दोनों का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है, but even though they have same intensity and same frequency, they will produce different sensation to the human ear because of their different waveforms. Now waveforms depends upon overtone present. Overtone का मतलब integral multiple of fundamental frequency. So as waveform depends upon overtone present, quality of sound also depends upon number of overtones present, and overtones can be expressed in terms of harmonic also. So quality of sound depends upon number of overtones या number of harmonics present in that particular sound. अगर वेवफॉर्म के फॉर्म में हमको बताना होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी साउंड कैन बी आइदर म्यूजिकल और नॉइज. तो म्यूजिकल साउंड किसको बोलेंगे? तो ये होगा म्यूजिकल साउंड का वेवफॉर्म और ये होगा नॉइज का वेवफॉर्म. तो म्यूजिकल साउंड का जो वेवफॉर्म होगा, ये पीरियोडिक वेवफॉर्म होगा और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और इसका शेप देखो, ये भी एकदम सिमेट्रिकल होगा. तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म, पीरियोडिक वेवफॉर्म ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड. एंड नॉइज में क्या होगा? वेवफॉर्म होगा नॉन पीरियोडिक, और उस वेवफॉर्म का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, रैंडमली चेंज होगा. तो नॉन पीरियोडिक अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड विल प्रोड्यूस साउंड ऑफ नॉइज. तो ये म्यूजिकल साउंड का वेवफॉर्म होगा और ये नॉइज का वेवफॉर्म होगा. डिफरेंस क्या है? म्यूजिकल साउंड का जो वेवफॉर्म है वो पीरियोडिक है, वो सिमेट्रिकल भी है और वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है. और जो नॉइज का वेवफॉर्म है वो असिमेट्रिकल है, उसका एम्पलीट्यूड देखो रैंडमली चेंज भी हो रहा है. तो ये होगा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, दैट इज क्वालिटी और टिम्बर.